Namaskar, my all dear student of class 12. I'm Shikha, your mentor, to help in the completion of your English syllabus for this session. In this video, I'm covering Tiger King, written by Kalki, of Vistas, chapter number 2, the main question answer, after completing the explanation and vocabulary of the chapter. Let's move towards question number 1. Who is the Tiger King? Why does he get that name? The Maharaja of Pratibandhapuram was called the Tiger of the King and the Tiger King. At the time of his birth, the astrologer declared that the prince would have to die one day. The 10-day-old prince asked the astrologer to reveal the manner of his death. The wise men were baffled at this miracle, and the chief astrologer said that his death would come from a tiger. The young prince growled and uttered terrifying words, "Let tigers beware." He decided to kill 100 tigers. He thus got the name Tiger King. So this was the complete story. We can say the behind named the Maharaja as Tiger King. When he was very young, जब उनका जन्म हुआ था, एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्ट किया था कि एक दिन ये मर जाएंगे. तो 10 ईयर्स के 10 डेज के थे वो सिर्फ महाराजा. उन्होंने पूछा भाई मरना तो सबको है, यू टेल मी द मैनर ऑफ द डेथ, कि मैं कैसे मरूंगा. तो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि यू हैव बॉर्न इन द स्टार ऑफ द टॉरस. ठीक है, आपका जन्म हुआ है और जो ऑक्स हैं और टाइगर हैं वो दोनों एनिमी हैं, तो आपकी डेथ जो होगी दैट विल बी फ्रॉम अ टाइगर. एंड आफ्टर दैट 10 days old जो महाराजा थे उन्होंने बोला लेट टाइगर्स बी वेयर, मीन्स वो डरे नहीं. उन्होंने कहा कि जितने भी टाइगर हैं वो सावधान हो जाएं. और उसके बाद उन्होंने वो किया, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो 100 टाइगर्स को मारेंगे. एंड ही वॉज वेरी वेल डूइंग एंड कंप्लीटिंग हिज वोज, एंड दैट्स वाई ही वॉज नेम्ड एज टाइगर किंग. Next question, what did the royal infant grow up to be? Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day. He was brought up by an English nanny and tutored in English by an Englishman. He got the control of his estate when he came of the age of 20. He decided to kill tigers. For him, it was an act of self-defense, as the astrologers had predicted his death by a टाइगर. यहाँ पे जो जंग बहादुर हैं वो उनका जो लालन पालन नरिशमेंट है वो कैसे हुआ, उनको सब कुछ जो रॉयल मैनर में दिया जा रहा था. फ्रॉम सिंस वेरी बिगिनिंग ही वॉज गिवन द नरिशमेंट थ्रू इंग्लिश मैनर. इंग्लिश नैनी थी जो उनकी देखभाल करती थी, इंग्लिश ट्यूटर थे जो उनको पढ़ाते थे इंग्लिश का वो मिल्क पीते थे, इंग्लिश मूवीज़ देखते थे. जब वो 20 ईयर्स के हुए तो उनकी जो किंगडम था उनके पास वापस आ गया. उससे पहले वो कोर्ट ऑफ द वॉर्ड्स के पास था. कोर्ट ऑफ द वॉर्ड्स जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे बताया था, जो कोर्ट होती थी, कोर्ट्स जो वार्ड्स मतलब जो बिना किसी, अगर बोला जाए कि पेरेंट्स या कोई एल्डर नहीं है, कोई टेक केयरर नहीं है वहाँ पर, तो ये कोर्ट ऑफ द वार्ड्स विल टेक केयर टिल द मैच्योर एज. और उस टाइम पे मैच्योर एज 20 ईयर्स थी. जब वो 20 साल के हो जाते हैं उनका किंगडम उनके पास आ जाता है, और उनके अकॉर्डिंग जो प्रेडिक्शन थी उस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही वोड कि वो 100 टाइगर को मारेंगे. और 100 टाइगर को मारना उनके लिए एक सेल्फ डिफेंस का मैटर था. मतलब वो बोलते थे कि भाई सेल्फ डिफेंस के लिए अगर आपको एक काऊ को भी मारना पड़ जाए तो आप उसको मार सकते हो. बट अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी वी वर्शिप काऊ. तो हम बोल सकते हैं इसमें उनका थोड़ा सा सेल्फिशनेस था कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए बोलते थे कि हाँ आई कैन किल एनी ऑफ द एनिमल, एंड दिस prediction for his death made him to do this vow. Next question, what will the Maharaja do to find the required number of the tigers to kill? क्योंकि 100 नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्होंने क्या किया? Within 10 years, the Maharaja was able to kill 70 tigers. Then the tiger population became extinct in the forest of Pratibandhapuram, and one day, then Maharaja sent for the Diwan and asked him to, he was aware of the fact that 30 tigers still remained to be shot down by his gun. The Diwan shuddered with fear, and the Maharaja told him that he decided to get married. He asked the Diwan to draw up the statistics of the tiger population in different native estates. Then he was to investigate if there was a girl he could marry in the royal family of a state with a large tiger population.
population. This plan was put into practice and Diwan found the right girl from the state which possessed a large number of the tigers, and Maharaja killed 5-6 tigers each time he visited his father-in-law. Thus, he was able to find the required number of the tigers he killed and he shot 99 टाइगर्स. तो 10 साल में उन्होंने कितने टाइगर्स किल कर दिए? 70 टाइगर्स. ठीक है. नाउ कितने बचे? 30 स्टिल लेफ्ट. अब जब 30 टाइगर बचे थे तभी उन्होंने निश्चित किया प्रतिबंधपुरम में खत्म हो गए भाई, इतने सारे फॉरेस्ट थे. 70 टाइगर्स वाज नॉट मींस वी कैन से ना शॉर्ट और लेस नंबर, ये भी अच्छा नंबर था. 70 के बाद उनको नहीं मिले टाइगर, तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब मैं शादी करूंगा. उन्होंने दीवान को बोला जस्ट फाइंड आउट अ रॉयल फैमिली एंड द स्टेट पोजेसिंग द नंबर ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन. उन्होंने दीवान ने पता लगाया, उनको एक ऐसी लड़की मिल गई रॉयल फैमिली से जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर थे. तो वो जब भी जाते थे अपने फादर इन लॉ से मिलने, अपनी ससुराल 5-6 टाइगर मार कर आते थे. और लाइक दिस आफ्टर द मैरिज ही वॉज एबल टू शूट 99 टाइगर्स. कितने टाइगर उन्होंने मार दिए थे? 99 टाइगर्स ही किल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट. अब ये प्रेडिक्शन भी उनको अच्छे से पता थी कि जो उनको डर है, ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल विथ 100 ऑफ द टाइगर. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, कैसे उनका फेट इज कॉल्ड डेस्टिनी या लक था, वो डिसाइड हुआ. Maharaja's anxiety reached highest level of excitement when only one tiger remained to be killed. He thought of the 100th tiger during the day and dreamed of it at night as well. But tiger farms ran dry even in the father-in-law's kingdom. Became impossible to locate tigers anywhere. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fear left. As the late chief astrologer had said that Maharaja should beware of the 100th tiger. The Maharaja was sunk in gloom. They came a happy news. Then, in his own estate, sheep began to disappear frequently from a hillside village. Surely a tiger was at the work. The villagers ran to inform Maharaja. The Maharaja announced a 3 years exemption from all the taxes of that village. He set out on the hunt at once, but the tiger was not easily found. Then the Maharaja continued camping in the forest and waiting for the tiger. So after 70 tiger, he killed 99 tiger in his in-laws home as well. But अब वहाँ पे भी tiger खत्म हो गए. तो तभी Maharaja has just announced to be in a thorough or a big search to find out the 100 tiger. उनका कहीं से भी लेकर आओ, I want 100 tiger, मुझे चाहिए. उसी गांव में उनको पता चलता है कि अचानक से जो भेड़ होती हैं वो गायब होना शुरू हो जाती हैं. And everybody was speculating कि this was the work of tiger. ये किसी टाइगर ने किया है. एंड जब उनको पता चलता है कि ये टाइगर ने किया है, महाराजा बहुत खुश हो जाते हैं. इससे पहले महाराजा बहुत ग्लूम थे. ग्लूम आप बोल सकते हो, संक इन द ग्लूम, या बहुत सैड हो गए थे जब उनको पता चला कि कहीं भी टाइगर नहीं मिल रहा है. उनको बोला कि भाई अब मेरी प्रतिज्ञा कैसी पूरी होगी, 100 टाइगर को मैं कैसे मारूंगा. बट जैसे ही उनको पता चलता है वो बहुत खुश हो जाते हैं. एंड देन उस विलेज के लोगों के लिए वो 3 years टैक्स एग्जाम्पशन रख देते हैं. यानी कि टैक्स से उनको क्या छुटकारा, गांव वालों को 3 साल के लिए छुटकारा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने उस टाइगर के बारे में बताया था. और उसके बाद जो महाराजा थे वो वहीं फॉरेस्ट में, उसी विलेज के फॉरेस्ट में कैंप लगा के रहने लगते हैं कि भाई अब जब मुझे टाइगर यहाँ पे मिलेगा, जब मैं उसको मारूंगा, ओनली देन आई विल बी बैक. ठीक है, तो ये 100 टाइगर था जो महाराजा का डेस्टिनी डिसाइड करने वाला था. Next question, what will now happen to the astrologer? Do you think the prophecy was indisputably disapproved? Now here, prophecy is called, आप बोल सकते हो prediction. Do you think the prophecy was indisputably disapproved? In dispute is called without any fight. Dispute is called with fight. And यहाँ पे आप बोल सकते हो without एनी फाइट, इंडिस्प्यूटेबली. यहाँ पे बोला जा सकता है कि भाई जब उनको 100 टाइगर मिल गया था तो वो क्या बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि भाई अब जो प्रोफेसी है, जो उसने प्रेडिक्शन किया है, वो कैसा हो गया, वो तो फॉल्स हो गया. ठीक है, विदाउट एनी फाइट. और आप बोल सकते हो आर्ग्यू, कि अब तो गुंजाइश नहीं बची थी. उन्होंने कहा कि भाई 100 टाइगर भी मिल गया है, तो उनका जो प्रेडिक्शन था या फोर टेलिंग था वो कैसा हो गया था, वो फॉल्स प्रूव हो गया था. क्या
Now here he, in order to save his skin का मतलब अपने आप को, खुद को, the Diwan got an old tiger brought from the People's Park in Madras. It was kept hidden in his house. मद्रास पीपल्स पार्क, ये नाम आया है पीपल पार्क मद्रास से। एक दीवान को उन्होंने बोल दिया अगर मुझे नहीं मिला तो जो होगा वो मैं नहीं जानता हूँ। दीवान समझ में आ गया था अगर हमने टाइगर नहीं ला के दिया तो रिजल्ट बहुत ख़राब होंगे, कैटास्ट्रॉफिक होंगे। तो दीवान जब लौट के आया उसको अपने घर में टाइगर मिला, वो थोड़ा सा बूढ़ा था, ठीक है, वॉज नॉट एबल टू अटैक ऑन एनी वन। पीपल्स पार्क मद्रास से लाया गया था। One midnight, with the help of his aged wife, he dragged the tiger to the car and shoved it into the seat. He himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. The Diwan hauled the beast out of the car and pushed it down to the ground. Next day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence, and Maharaja was overjoyed. He took careful aim at the beast, and the tiger fell down in crumpled heap. The Maharaja was extremely happy that he had killed the 100th टाइगर। तो क्या कहानी थी यहाँ की, पूरा जो जब उनको टाइगर मिल गया तो कैसे भी करके दीवान ने उसको जंगल में पहुँचा दिया, और वही टाइगर दूसरे दिन महाराजा को जंगल में दिखाई दिया और उन्होंने उसको शूट कर दिया। एंड जब उन्होंने शूट किया तो टाइगर जो था वो एक मतलब ड्राई घास के ढेर की जैसे वो नीचे गिर गया, मतलब उनको लगा कि ही हैड किल्ड द टाइगर। बट आगे भी है, द हंटर्स फाउंड दैट द ओल्ड टाइगर वॉज नॉट डेड. It had not only fainted on hearing the sound of the bullet. They did not want the Maharaja to know this fact and lost their job. So one of them shoot at it and killed it. The dead tiger was taken in a procession through the town and buried there. The tomb was erected over it, and the prophecy was not disapproved as the king met his death with the infection caused by the silver of wooden tiger. The astrologer was already dead. He could not be punished or rewarded. उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने मार दिया वो बहुत खुश हुए कि भाई चलो 100 टाइगर आई हैव किल्ड। बट जब हंटर्स, जो उनके सपोर्टिंग हंटर्स थे, जब वो वहाँ पे गए, उन्होंने ध्यान से देखा तो वो टाइगर जिंदा था। ही वॉज लुकिंग टूवर्ड्स दैम विद बिवल्डर्ड आइज, वो भी देख रहा था। तब उसमें से एक हंटर ने उसको मारा। तो एक्चुअल में 100 टाइगर को किसने मारा? हंटर ने मारा, ठीक है। एक किसी उसके बाद उसका प्रोसेशन निकाला गया, जुलूस निकाला गया अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द महाराजा, एंड उसकी टॉम इरेक्ट की गई, ठीक है। 100 टाइगर था तो उसका बाकायदा टॉम इरेक्ट किया गया, उसको बरीड किया गया। बट द प्रोफेसी वॉज नॉट डिसअप्रूव्ड। अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस कहानी के बाद अगर हम छोड़ देते हैं तो हमको लगता है कि हाँ भाई प्रोफेसी जो थी उनकी झूठी साबित हो गई। बट प्रोफेसी वॉज नॉट डिसअप्रूव्ड। वाई? बिकॉज द टॉय टाइगर, उसमें से जो सिल्वर्स, वुडन टाइगर का जो वुडन का टॉय टाइगर था, उसमें जो सिल्वर्स बाहर निकल रहे थे, सिल्वर्स हम बोल सकते हैं महीन महीन जो लकड़ी के शार्प जो एजेस निकल रहे थे, रफ एजेस जो निकल रहे थे, वो एक महाराजा के हाथ में लग जाता है, एंड देन महाराजा caused and met with his death. अब एस्ट्रोलॉजर ऑलरेडी डाइड, एस्ट्रोलॉजर पहले ही बहुत एजेड था, वो मर चुका था, तो अब कोई भी नहीं बचा था उसको पनिश करने के लिए, ठीक है। Now next is, the story is a satire on the conceit of those in power. How does the author employ the literary device of dramatic irony in the story? सटाया मतलब किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है। कंसीट इन दोज इन पावर, कंसीट मतलब छुपाना, मतलब जो पावरफुल थे एक तरह से देखा जाए उनके सटायर बनाया गया है, उनका मजाक उड़ाया गया है कि भाई पावरफुल लोग जो होते हैं वो भी अपनी डेस्टिनी से मतलब इल डेस्टिनी से नहीं बच सकते, जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो आपको लगता है क्या ऐसा था? और इसमें किस तरह से जो राइटर हैं, काल्की हैं, उन्होंने लिटरेरी डिवाइस ड्रामेटिक आयरनी को यूज़ किया है। आयरनी का मतलब हम जो बोलते हैं उसका मतलब बिल्कुल उसके उल्टा होता है। तो कैसे यूज़ किया है उन्होंने? One, on surface level, the Tiger King seems to be a simple story about a royal prince, his growth and exploits as a king. The prophecies at his birth about the manner of his death make the story interesting by introducing the element of surprise and suspense. On the deeper level, the story is a satire on the conceit of those in power. It is usually seen that those in power have too much pride in themselves and what they do
two such specimens in the story are the Tiger King and the British officer. The author employs dramatic irony and humor to show that their faults and weaknesses. अगर हम एक तरफ देखें तो ये स्टोरी बहुत सिंपल सी है, राजा की कहानी है, ठीक है, जैसे वो बड़े होते हैं, फिर उनकी शादी होती है, किस तरह से वो अपनी प्रजा को चलाते हैं, छोटी छोटी स्टोरी, बट कैसे इंटरेस्टिंग कैसे हो जाती है जब वो एस्ट्रोलॉजर ये प्रेडिक्शन करते हैं. डीपर एंड में अगर आप इसका इनडायरेक्ट मीनिंग देखो तो ये स्टोरी एक सटायर है, एक तरह से ह्यूमर है उन लोगों पर जो पावर में होते हैं. पावर का मतलब क्या हुआ, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हुए, जो ऑफिसर लेवल या रैंक के, ऊंची रैंक के जो लोग होते हैं, जैसे कि महाराजा और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो. बट कुछ भी हो, वट एवर इज देयर, वट एवर द काइंड ऑफ लाइफ दे आर लीडिंग, बट दे कैन नॉट गो अवे, दे कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द डिसाइडेड डेस्टिनी. वो अपनी डेस्टिनी से नहीं बच सकते हैं. और यहाँ पर ये जो ह्यूमर है ये उनकी गलती और वीकनेस को शो करता है. जिस तरह के इंस्टेंट जो टेक्स्ट आए थे बीच बीच में जो हमने पढ़े थे ह्यूमरस टेक्स्ट, वो उनकी वीकनेस को शो करते हैं. The words of these characters carry an extra meaning. They do not know what is going to happen. The Tiger King resolves to hunt 100 tigers to disapprove the prediction of the astrologer. In his stubbornness, he falls prey to the wooden tiger. The high-ranking British officer is equally vain. He is more interested in photograph with the carcass than hunting itself. The Tiger King offers to organize any other hunt except tiger hunt. It may be boar hunt, mouse hunt, mosquito hunt, and he has lost 3 lakhs rupees for his refusal. The ego of the British officer is satisfied when his wife is pleased to get diamond ring sent by Maharaja. तो यहाँ पर हम किस तरह से बोल सकते हैं कि हाँ ये उनका जो प्राइड था वो गलत साबित हुआ कि भाई अपनी स्टबननेस में, अपनी ज़िद्दीपन में उन्होंने 100 टाइगर को तो मार दिया, बट ही वॉज नॉट मीन्स दैट टाइम ही हैजंट श्योर अबाउट दैट द टाइगर वॉज डाइड और नॉट. उनको लगा वो मर गया है, बट बाद में क्या हुआ, उनको अपनी डेस्टिनी छोटे से वुडन सस्ते से टाइगर वुडन टॉय से ही कॉज्ड एंड ही मैट विद हिज डेथ. सेम एज अगर देखा जाए तो ये क्या है, बहुत छोटी सी चीज़, इजंट अ काइंड ऑफ ह्यूमर ऑन द पार के एक पावरफुल राजा को एक छोटे से टॉय ने मार दिया. और दूसरी तरफ जो ब्रिटिश ऑफिसर था, ही हैड कम, मतलब ही जस्ट वांटेड टू शो हिमसेल्फ अ हंटर, अ टाइगर हंटर. ही वांटेड टू हैव दिस द फोटोग्राफ विद द कार्कास ऑफ द टाइगर. और किसी ने भी उसको मारा हो तो ये क्या है, मीन्स अगर रियल में अगर फोटोग्राफ देखा जाए तो यू मस्ट बी प्राइड कि बस ब्रिटिश ऑफिसर हैज डन द हंटिंग ऑफ द टाइगर, बट इन फैक्ट ही जस्ट वांटेड अ फोटोग्राफ. तो दीज आर द रियल थिंग्स विच आर देयर बिहाइंड द पर्सनैलिटी ऑफ द established and the powerful person. वो कैसे खुश हो गया, बस उसकी वाइफ को डायमंड रिंग्स मिल गई and he was just go away from the proposal, means he was not determined on his proposal. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आयरनी, हर जगह उन्होंने आयरनी का यूज़ किया है. वाइल डिस्कसिंग द चैप्टर आई वाज कीप ऑन टेलिंग यू जो ह्यूमरस इफेक्ट आए हैं या आयरॉनिकल टेक्स्ट आया था, मैं आपको बताती जा रही थी. Next is, what is the author's indirect comment on the subjecting innocent animal to the wilefulness of human beings. यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ये सब मतलब कि कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा है, जो एनिमल है. मतलब अगर जैसे डेस्टिनी आपकी है, कुछ इस तरह का लिखा हुआ है, बट इनडायरेक्टली व्हाई आर यू ट्रबलिंग द एनिमल्स. तो इस स्टोरी में है कि भाई ह्यूमन बेनिफिट के लिए एनिमल को सब्जेक्ट बनाया जा रहा है. For centuries, innocent animals have been subjected to the wilefulness of the human beings. Man has been killing animals for sports, meat, or organs of the body. The author does not make any direct comment about it in this story. Man advances a strange logic to defend even his unlawful and cruel act. The Maharaja quotes an old saying, "You may kill even a cow in self-defense." Hence, he finds no objection to kill tigers in self-defense. It reveals not only the callousness of human being towards wildlife, but their disregard for maintaining ecological balance. The extinction of the tiger species in Pratibandhapuram estate and the state ruled by the Maharaja's father-in-law illustrates the result of men's cruelty towards wild animal. An old tiger has to be brought from the People's Park in Madras to satisfy the king's whim to kill 100
tiger? So this question is talking and asking about the reality then, and the answer is presented the actual realities that we are showing towards the animal. उन्होंने कहा कि अभी से नहीं, सेंचुरी शताब्दी हो गई जब से जो आदमी है अपने बेनिफिट के लिए अत्याचार करता आ रहा है जानवरों पर, किसके लिए, कभी कभी वो स्पोर्ट्स के लिए, कभी उनको मीट के फॉर्म में, कभी उनके ऑर्गन ऑफ द बॉडी उनको डेकोरेशन के फॉर्म में लगाने के लिए उनका हंट करते हुए आ रहे हैं. यहाँ पे कोई डायरेक्ट कमेंट तो नहीं किया है काल्की ने, बट इनडायरेक्टली मैसेज हमको मिल जाता है कि भाई उनकी वजह से अगर देखा जाए तो प्रतिबंधपुरम के पूरी एक्सटेंट, मतलब पूरी पॉपुलेशन एक्सटेंट हो गई, वहाँ पे टाइगर बचे ही नहीं. उसके अलावा उनके फादर इन लॉ के रेन में भी जितने किंगडम में भी जितने भी टाइगर थे वो उनको भी उसने मार दिया. सबको मारने के बाद 100 टाइगर के लिए भी पीपल पार्क से जो मतलब जो पेट, अब जो टाइगर थे जो केज्ड हैं, दे आर फॉर सम अदर रीजन, उनको भी वहाँ से लाया जा रहा है जस्ट टू फुलफिल द सेल्फिश पर्पस ऑफ द ह्यूमन बीइंग. तो हम बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ है एक तरह से नेचुरल फॉर्म में भी देखा जाए तो अगर आप ये पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल इज अनबैलेंस तो क्या होगा, ऑब्वियसली इलॉजिकल बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा. इकोलॉजिकल बैलेंस मीन्स, इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब होता है लाइक वी वांट द काइंड ऑफ एनवायरमेंट, द काइंड ऑफ एटमॉस्फियर वी आर हैविंग, जो भी हमको चीज़ चाहिए, बट एट द सेम टाइम वी डू नीड द प्रेजेंस ऑफ द वाइल्ड बीस्ट एंड द डोमेस्टिक पेट्स बीस्ट इन सेम सोसाइटी. वो भी होना बहुत ज़रूरी है. अगर हमारे पास वाइल्ड बीट्स नहीं होंगे, मान लो एक तरह से एग्जाम्पल है कि ठीक है आपने सारे टाइगर्स को मार दिया, अब टाइगर्स बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए, तो द नंबर ऑफ द पेट्स, द नंबर ऑफ द डोमेस्टिक अदर एनिमल्स ऑफ द जंगल दैट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो इम्बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा एक तरफ. इसीलिए तो ये फूड चेन बनाई गई है. मीन्स दिस नेचर इज रियली बिल्ट ऑन अ वेरी लॉजिकल वे. Means the tiger is eating or hunting the deer is eating the grass. If there will be no tiger, the number of the deers will keep on increasing and there will be imbalance because number of the deers will eat number of the vegetation and then vegetation की lack हो जाएगी, कमी हो जाएगी. So whatever is there, ecological balance होना बहुत ज़रूरी है. But men's की cruelty towards the wild animals have been seen since centuries for their selfish purpose. वो जो इस स्टोरी में भी दिखती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ महाराजा's minions towards him? Do you find them truly sincere towards him, or are they driven by fear when they obey him? Do we find a similarity in today's political order? This question is asking that महाराजा जो भी कर रहे थे वो सच में लॉजिकल था या वो सिर्फ अपने फियर की वजह से कर रहे थे, और आज के सिनेरियो में, आज के पॉलिटिकल ऑर्डर में क्या हम इस चीज़ को फिट कर सकते हैं? A minion is an unimportant person, is an organization who has to obey the orders. जो minion होता है, जो मेजर लोग नहीं होते हैं, उनको सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने हैं, वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जैसा, और जो डिसाइड किया जाएगा उनको वो करना होगा. The Maharaja has many minions or servants. Most of them fear the Maharaja and obey his order faithfully. They dare not disobey him and contradict him. The Maharaja's displeasure means loss of the job, even loss of the life. Only a few of them are truly sincere towards him. One such person is chief astrologer. He is willing to burn his book. This is burn, right? Burn his book of astrology, cut off his tuft, and crop his hair short. His prediction proves untrue. If the others try to keep the Maharajas in good humor, even the Diwan is no exemption. Many of the officers lose their job when the Maharaja fury and obstinacy mount higher. यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑर्डर फॉलो करते हैं, और महाराजा के पास भी थे बहुत सारे सर्वेंट थे जो फेथफुली या फियर की वजह से उनको फॉलो करते थे. यहाँ पे जो फेथफुल बोला गया है, जो सिंसियर है, वो कौन थे? वो एस्ट्रोलॉजर थे, जिन्होंने कहा कि नहीं भाई, मेरे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है, जो मेरा एलिजिबिलिटी कहती है, जो मेरी एस्ट्रोलॉजी कहती है, उसके अकॉर्डिंग जो मेरी प्रोफेसी है वो बिल्कुल सच होगी. अगर ये गलत हुई तो मैं सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक जला दूंगा, अपनी चोटी काट लूंगा, एंड अपने जो हेयर है उनको छोटा करा के मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. तो
तो यहाँ पे दिखता है कि आप कुछ भी कर लो, मतलब उनको फियर नहीं था। एस्ट्रोलॉजर कह सकता था कि हाँ मेरी चीज़ गलत है और वो कि महाराजा कहीं मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दे, मेरी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड ना कर ले, मुझे मार ना दे, बट वो ऑनेस्ट थे। तो यहाँ पे ये फेथफुलनेस देखी जा सकती है। बट यहाँ तक कि जो दीवान थे, दीवान भी इसका नो एक्सेप्शन था। बट मैनी ऑफ द ऑफिसर्स, बहुत सारे लोग थे जो उनके फियर की वजह से, अपना जॉब लूज होने की वजह से उन्होंने अनफेयर मीनिंग किया। द किंग्स बुलेट मिसेस द 100 टाइगर, इट फेंट्स फ्रॉम द शॉक एंड फॉल्स एट द crumpled heap. The hunters realize the truth, but they decide not to reveal it to king, and they fear that they might lose their job. In today's political order, subordinates serve the superiors, bosses, as deaf and dumb creatures who see only what their masters want them to see. Their self-interest and fear of elimination make them faithful servant. अगर वहाँ पे वो hunters उस टाइम पे राजा को बता देते कि that tiger, 100 tiger was not actually killed, तो maybe the story can take a different turn. बट वहाँ पे उन्होंने नहीं बताया, क्यों? सिर्फ इस डर की वजह से कि उनकी जॉब ना चली जाए। सेम आज के पॉलिटिकल ऑर्डर में भी ये जो सबॉर्डिनेट होते हैं वो बिल्कुल डेफ एंड डम, गूंगे और बहरे बनकर ऑर्डर्स फॉलो करते हैं अपने सुपीरियर्स के, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट लूजिंग देयर जॉब, कि कहीं उनको निकाल ना दिया जाए। तो दिस इज रियली, वी कैन से ना, दिस इज द रियल वर्किंग मैनर ऑफ टुडेज एज वेल, एंड ये ज़्यादातर पावरफुल आदमियों के साथ ही होता है एंड मिनियंस को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you relate the instances of game hunting among the rich and the powerful in the present time that illustrate the callousness of human beings towards wildlife. यहाँ पे what you relate instances of game, it means you relate the instances is called examples of the game hunting among the rich. अभी भी game hunting जो होती है among the rich and the powerful and of the present time, एंड यहाँ पर हमको क्या इलस्ट्रेट करना है? carelessness. carelessness आप बोल सकते हो कोल्ड हार्टेडनेस, कठोर हृदय जो बोलता है ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ। अभी भी जो वाइल्ड लाइफ की तरफ वो उनका किस तरह का एटीट्यूड है। सो व्हाट कैन यू रिलेट? कैन यहाँ पे आएगा, can you relate, right? In our times, big game hunting has been banned. Big game hunting. By law, as so many species of the wildlife have been declared endangered species. Sanctuaries, national parks, and games reserve have been established to preserve the wildlife from extinction and maintain ecological balance in the nature. Even then, sporadic cases of game hunting are reported in the newspapers now and then. It is generally noticed that the East-while rulers, kings, or the Nawabs, or the rich of the powerful persons, or famous film stars indulge in game hunting. Then this case against late M.A.K. Pataudi and Salman Khan are still pending in courts. Then poachers and smugglers too destroy wildlife for skin, meat, or for various organs of body and escape scot-free. देखा जाए तो बहुत सारे गेम हंटिंग इट्स अ काइंड ऑफ इलीगल, ठीक है, इसको इलीगल माना गया है। यू कैन नॉट डू द एनिमल हंटिंग जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ द फन, बट बहुत सारी चीज़ें हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो की गई हैं इसको रोकने के लिए। दैट आर सेंचुरीज हैव बीन मेड, सो मैनी रिजर्व पार्क्स हैव बीन मेड, नेशनल पार्क हैव बीन मेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ दोज एनिमल्स। बट इवन देन some of the Nawab, king of Nadan side and film star, जितने भी established and powerful लोग होते हैं वो इसमें indulge होते हैं। Like अगर हम example दें अगर इसका, तो यहाँ पे M.A.K. पटौदी, जो पटौदी है, सलमान खान के जो केस हैं अभी भी पेंडिंग पड़े हैं, उनको कोई भी सज़ा नहीं मिली है। बहुत सारे स्मगलर्स होते हैं, पोचर्स होते हैं जो वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। पोचर्स आप बोल सकते हो हंटर्स, ठीक है, हंटर्स होते हैं जो ग्रुप्स में या अलोन दे आर डूइंग दिस हंटिंग, एंड वो किस चीज़ के लिए करते हैं? उनको एनिमल स्किन चाहिए, बहुत सारे ऑर्गन्स चाहिए, मीट के लिए करते हैं और आर्टिफैक्ट्स के लिए करते हैं, स्मगलरिंग करते हैं इस तरह की चीज़ों की, और वो हमेशा फ्री छोड़ दिए जाते हैं। मतलब आपको क्या लगता है जो वाइल्ड लाइफ है अगर उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, नॉट ईच एंड एवरी केस रीच टू इट्स जजमेंट, बहुत सारे केस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, बट even then the wild animals, the poor deaf and dumb wild animals, they are losing their we can say na precious life.
Last question देखते हैं. We need a new system for the age of ecology, a system which is embedded in the care of all the people and also in the care of the earth and all life upon it. Discuss. तो हम यहाँ पे new system हमको चाहिए जो केयर में हो, अर्थ के भी केयर में हो, people सभी लोगों के beneficial में हो, इस तरह का system होना चाहिए. Modern age is the age of ecology. A new consciousness has arisen among human beings. Animals and birds are as much a part of the nature as human beings. The destruction or a haphazard killing of one species may not only lead to the extinction, but it will adversely affect the ecological balance. Those animals which serve as food for the wild animals will increase in large number if the beasts of the prey are wiped out. Each species, howsoever fierce, deadly, furious, or the poisonous, has its own role in the scheme of things. We must devise a new system. It must focus on the care of all the living, being on the earth as well as the earth itself and all life, vegetative and animal living on it. Steps have to be taken to preserve ecological balance in nature and prevent environment पॉल्यूशन. तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई इकोलॉजी बैलेंस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए जो भी मैंने आपको बताया था, एक दूसरे को रहना बहुत ज़रूरी है. कैसा भी कोई भी जानवर हो, वट एवर इज़ देयर, लार्ज नंबर ऑफ द बीट्स है, डेडली है, फ्यूरियस है, पॉइजनस है, हर तरह के क्रीचर की importance है. That's why they are the part of the earth. Nature has created them, the God has given birth to them. तो सबका कुछ ना कुछ पार्ट है, इंपॉर्टेंस है सबकी. अगर कोई भी क्रीचर घटता या बढ़ता है, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है. इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो एडवर्सली अफेक्ट करता है सबको. हैपहज़र्ड और डिस्ट्रक्शन, हैपहज़र्ड इज कॉल्ड अंधाधुंध जो किलिंग हो रही है वाइल्ड एनिमल्स की, जो डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ को, उसका इम्पैक्ट हम इनडायरेक्टली हम लोगों पे ही पड़ रहा है, उन लोगों पे ही पड़ रहा है जो ये कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली जितने भी लिविंग बीइंग हैं जो अर्थ पर रहते हैं, सबकी लाइफ को यहाँ पर पूरा पूरा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको पूरा पूरा उनका हक मिलना चाहिए. जो भी वेजिटेटिव हैं, जो हर्बीवरस हैं, कार्निवरस हैं, ओमनिवरस हैं, ईच एंड एवरीबडी इज हैविंग द इक्वल पार्ट इन द फूड चेन to make the equal ecological balance in this environment. So environment pollution को रोकने के लिए, ecological imbalance को रोकने के लिए नए steps और नए rules and regulation and policies must be implemented and framed. ठीक है, तो with this we have completed the textual part of this chapter. During the revision time I will try to bring more extra questions. Till then you can prepare yourself, but these were the questions that has cleared the uncleared concept of, even if it is left. Otherwise I have thoroughly explained the chapter as well. So I am ending this video here now, and in next video I'll bring with a new chapter or maybe a poem to you. Okay, till take care.